Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन की साइडलाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इसमें सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात को लेकर है। और भारतीय समय के मुताबिक देर रात पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई और इस बातचीत को लेकर बड़ी खबर यह है कि भारत और कनाडा दोनों देश नए राजनीतिकों के लिए सहमत हो गए हैं। पिछले साल अक्टूबर में कई दौर के आरोपों के बाद कई राजनयिकों को हटा दिया गया था। अब दोनों देशों ने इनकी बहाली का फैसला किया है। इस बातचीत में एनर्जी के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात हुई है। दोनों देशों ने यह भी फैसला लिया है कि व्यापार समझौते को लेकर बंद पड़ी बातचीत दोबारा शुरू की जाएगी। Shri Narendra Modi and Prime Minister Mark Carney of Canada have just a short while ago concluded a very positive and constructive meeting on the sidelines of the G7 summit here in Kananaskis in Canada. The meeting discussed the importance of the India-Canada relationship, which is based on shared values, democracy and the rule of law, people-to-people contact, and many other commonalities. The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship. And the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. Other diplomatic steps will follow in due course. The two Prime Ministers also agreed to resume senior and working level mechanisms and discussions in a host of areas related to trade, to people contact and connectivity, all of them intended to bring greater momentum to the relationship. The two leaders also discussed potential collaboration in a host of issues related to clean energy, clean technology, digital infrastructure, artificial intelligence, food security, critical minerals and supply chains. In view of the trade negotiations between the two countries that are currently paused, the two leaders also decided to instruct their officials to take it up at an early date. The two leaders agreed to stay in touch and meet once again at the earliest possible opportunity. और बातचीत से पहले कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा है कि आतंकवाद और राष्ट्रीय आक्रामकता के खिलाफ भारत और कनाडा साथ काम कर सकते हैं। कनाडा के पीएम का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। पीएम मोदी का ये कनाडा का जो दौरा हो रहा है ये कई मायनों में खास है, क्योंकि मार्क कार्नी से तो प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, इसी साइडलाइन में कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी पीएम ने मुलाकात की। आतंकवाद को लेकर दोनों देशों की एक राय रही। इसके साथ ही खालिस्तान समर्थकों के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि भारत कनाडा से लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत और कनाडा को मिलकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना होगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कनाडा के पीएम ने इस मौके पर और क्या-क्या कहा। Prime Minister, it's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. I enjoyed your intervention just now, and we look forward to our discussion. और पीएम मोदी ने इस मौके पर मार्क कार्नी को धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। कनाडा के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत
दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।